Guys, good morning to all. First of all, I want to say that please subscribe my channel. Please see all my videos and also hit the bell icon button and comment it and also share it. Okay, so let's start our video. Okay, so I Himanshi am making this video. So today topic is to understand how to show root 2 that it is irrational. We have to show that root 2 is irrational. Okay, so let's start. Okay, let us assume to the contrary that root 2 is rational. Okay, अभी हमने क्या करा है, अभी हमने कॉन्ट्रेरी लिया है कि अभी हमारा रूट 2 क्या है, रेशनल है. अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम अपने आप ही कॉन्ट्रेरी चूज़ करेंगे कि ये इरेशनल, हम मानेंगे कि ये रैशनल है, फिर हम अपना ही कॉन्ट्रेरी एजम्पशन जो है गलत बता देंगे और फिर हम बता देंगे कि रूट 2 क्या है, इरेशनल. तो अभी आपको नहीं समझ आएगा, मैं अभी जब करती हूँ तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती रहूँगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. Let us assume to the contrary that root 2 is rational. Then there exists co-prime positive number, positive integer. Okay, a and b such that root 2 is equals to a upon b, where a and b are co-prime numbers. And b is not equals to 0. Now squaring both the side. Okay, squaring both the sides. रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर. तो रूट 2 को जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा निकल कर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू टेक दिस बी हेयर. ओके, दैट मीन्स 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. Okay, then what we have to do, b square is equals to a square upon 2. Okay, now thus a square is divisible by 2 and a is also divisible by 2. Okay, so until here we have done what? We have take contrary that root 2 is rational. Okay, then we have write that there exist some co-prime positive integers a and b. a and b क्या है हमारे co-prime positive integer. Then such that root 2 is equals to, यानी कि ये root 2 is equal किसके हो गए, is equals to a upon b, p upon q की form. Okay, now where a and b are co-prime numbers and b is not equals to 0. Okay, then नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. अब हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर रहे हैं. रूट 2 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर. तो रूट 2 को जब करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा. देन हमें क्या मिल जाएगा, 2b स्क्वायर, बी को इधर ले जाएंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे बी स्क्वायर को इधर छोड़ देंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा. Thus a square is divisible by 2. a is also divisible by 2. Okay, now so we can write a is equals to 2c for integer c. Okay, अब एक और चीज़ बता दूं कि c हमने लिया है एक और इंटीजर. क्यों लिया है, क्योंकि हमें रूट को क्या करना है, इरेशनल. पर हमने अभी क्या कॉन्ट्रेरी ले रखा है तो रेशनल ले रखा है. ओके, फॉर दैट वी हैव टेकन इंटीजर c to prove that.
Okay, now substituting the value of equation of a of equation a in equation 1. Okay, it's 1. A in equation okay, this is nothing. Substituting the value of equation 1 into a. Now 2b square is equals to 2c square. अभी हमने यहाँ पर 2c लिया था ना, तो वही हमने यहाँ ले लिया. ठीक है, 2c square. Okay, now 2b square is equals to 2c square. Okay, now what we have to do, जब हम 2b square, ये तो 2b square है, ये 2c होल स्क्वायर है, तो इसको करेंगे तो 4c स्क्वायर आ जाएगा. तो ये b यहीं रह जाएगा स्क्वायर. 4c स्क्वायर अपॉन में 2, b square is equals to 2c square. Okay, then what we have done here, now next is b square upon 2 is equals to c square. I hope that you all understanding this question step by step, because this question is very important and mostly it comes in your exam. Mostly it's come in your board exam of 3 or 4 marks. Mostly 4 marks it come. Now ये हमने कर लिया इतना, अभी हमने सारा सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को. हमारी ये क्वेश्चन थी, इसको हमने पूरा सॉल्व करा, बी स्क्वायर ही आ गया. जैसे ही हमने यहाँ किया था कि हम 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर थे, यहाँ भी वही सेम था. 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर था, वो यहाँ गया, b स्क्वायर बन गया, 2c स्क्वायर हो गया. फिर हमने क्या करा, b स्क्वायर था जो हमारा, 2 को हमने इधर भेज दिया, c स्क्वायर हो गया. यानी कि हमें क्या करना था, हमें a और b के a स्क्वायर को क्या करना था, डिविजिबल करना था. पर यहाँ पे तो ये a स्क्वायर से हुआ था, अब हमें यहाँ पर b को करना था, इसलिए हमने यहाँ पे c लिया था इंटीजर. अब आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि मैंने इंटीजर c क्यों लिया था. इसलिए लिया था क्योंकि मुझे b स्क्वायर को भी दिखाना था कि वो डिविजिबल है 2 से, और b को भी दिखाना था कि वो डिविजिबल है 2 से. ओके, नाउ नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट स्टेप. I hope this whole you understand step by step. Next we have done here this b square upon 2 is equal to c square. Okay, now next point is, this means b square is divisible by 2 therefore 2 is common factor. 2 is common factor of both a and b. यही मुझे शो करना था, both a and b. हमें 2 चीज़ शो करनी थी, 2 को इर्रेशनल और a और b को 2 के कॉमन फैक्टर्स. ओके, नाउ बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट our assumption a and b आर को प्राइम नंबर्स. ये हमने पहले ही कहा था कि जो हमारे a एंड b है वो क्या है, को प्राइम नंबर्स है. ओके, देन द कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. Thus root 2 is irrational, or you can say hence root 2 is irrational.
सो प्रूव्ड, वी हैव शोड। ओके, अब हमने बता दिया कि हमने ये